Hello students, a very warm good morning to all of you. आप सब कैसे हैं? आप ठीक हैं? वेरी गुड. और आप सबका मून वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसा चल रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है उसकी या नहीं? आर यू डूइंग इट गुड? Enjoying also? Very good. So students, in yesterday's class, what we have done? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? Yes, we have studied about moon and stars that twinkle. Yes, कल हमें ये पता चला ना कि stars twinkle करते हैं तो कैसे करते हैं? Yes, very good. आप सबने स्टडी की, आपने सबने AHW कंप्लीट किया अपना या नहीं? I have given you 2 questions ना, so you have done it or not? I know you all are my good students, so you have completed your work, है ना? चलिए, so let us start our today's class, okay? And we will verify our questions also. Yes? So first of all, what we have to do? We have to write down the date. So what is the date today? Yes, 8 and 8 month and 20 year. Yes, and what is the day today? आज कौन सा डे है बच्चों? Yes, Saturday. Yes, आज सैटरडे है ना? Yes, and हमारी यूनिट कौन सी चल रही है अभी? यूनिट नंबर? Yes, 5 and chapter number? Our chapter number is 5. And what is the name of our chapter? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Yes, the moon and the stars. यही नेम है ना हमारे चैप्टर्स का. So in yesterday's class we studied about the moon and stars that twinkle. Yes, we studied about these 2 topics now. And in very first class, I told you that we have 3 topics in this chapter. Yes? And what is one more topic we are going to study about today? Yes, constellation. But before starting with our new topic, let us recall our previous 2 topics. Yes, we have studied about moon and stars. What is moon? Yes, moon is the natural satellite of the earth. And और कौन बताएगा moon के बारे में? Yes, okay, Anya will tell. Yes, moon goes around the earth. Yes. और कौन बताएगा? Okay, Lakshya, you will tell. Yes, on moon there is no life. Why? Because there is no air and water. Very good students. Okay, and now who will tell about the stars? चलो सबसे पहले ये बताओ कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं या नहीं? Yes, stars twinkle करते हैं. Why? Because हम उनको अपने ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, हम उनको अर्थ से देख रहे हैं, है ना? अगर हम उनको आउटर स्पेस जाके देखेंगे तो स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देंगे, है ना? और स्टार्स होते क्या हैं?
कौन बताएगा? ओके, संभवी यू विल टेल मी स्टार्स क्या होते हैं. Very good. Stars are huge ball of hot burning gases. Very good बेटा. Yes. और कौन बताएगा कि stars क्या होते हैं? Yes, Krishna has given very good point that stars have heat and light of their own, whereas moon do not have heat and light of their own. Yes. Okay. And what else? Yes, most visible star is आपका AHW क्वेश्चन था ना कि मोस्ट विजिबल स्टार कौन सा है, कौन बताएगा? यस विवेक, यू टेल, कौन सा स्टार है? पोल स्टार. वेरी गुड. सो आप सबने अपने AHW क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, है ना? Yes, very good. So what is our today's topic? Constellation. Yes. Are you excited to read about it? Okay. So let us start our today's topic, and that is constellation. Everybody knows ना what it means. Constellation means क्या होता है? Yes, con means together, and stella means क्या होते हैं? Stars. Yes. A group of stars that together form any pattern are constellation. चलो अब हम क्या करेंगे? We will start the reading. Okay, we will start our reading from the book. So let's just come and open our book. Yes, our topic is constellation, and you have to take out page number 254. Yes, the patterns formed by the stars in the sky are called constellation. Observe the night sky carefully. Stars appear to form patterns in the sky. These patterns look like pictures of animals, humans, or things. Such patterns are called constellation. One of the constellation we can clearly see is the Great Bear or the Ursa Major. सो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हो ना, यहाँ पे स्टार्स हैं, है ना, और ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं. कैसे? जब हमने उनकी लाइन ज्वाइन कर दी तो हमें दिख रहा है कि ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है. नहीं तो स्टार्स हमें कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसे, है ना, प्रॉपर नहीं दिखते ना. इसमें भी देखो स्टार्स में हमें क्या दिख रहा है? देखो ये ह्यूमन दिख रहा है ना कोई. ये देखो, ये हेयर हो गए, ये उसकी बैक हो गई, ये उसका फेस हो गया, ये नेक हो गई. ऐसे कुछ ना कुछ हमें दिखता रहता है ना. वैसे ही अगर हम प्रॉपर जो स्टार्स हैं उनको देखा जाए तो वो कुछ ना कुछ फॉर्म करते हैं, है ना. आप सबने ये ऑब्जर्व तो किया ही होगा ना, डेली एक्टिविटी करने जब आप टेरेस पे जाते हो तो आपने स्टार्स देखे होंगे, वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं, है ना. चलो, तो द पैटर्न फॉर्म बाय द स्टार्स, जो स्टार्स हैं, जो पैटर्न वो फॉर्म करते हैं, कहाँ पे? इन द स्काई. और किस टाइम करते हैं? एट द नाइट टाइम, है ना. इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. ठीक है, आप कभी भी रात में आसमान में देखना, स्टार्स कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं, बट यू हैव टू सी वेरी केयरफुली. आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, है ना. स्टार्स जो है पैटर्न फॉर्म करते हैं कहाँ पे? इन द स्काई. यस. और वो पैटर्न्स दिखते कैसे हैं?
कोई ह्यूमन जैसा या कोई एनिमल जैसा या कोई चीज, जैसे ये देखो, ये आपको स्पून जैसा नहीं लग रहा? एक सूप पीने वाली जो स्पून होती है ना, एकदम ऐसी तो होती है, वो ऊपर से एकदम नीचे आती है और फिर वो बहुत बड़ी सी नीचे स्पून होती है जिससे आप सूप पीते हैं, उसकी शेप कुछ ऐसी ही होती है ना? यस, ये जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशन। यस, और आप जो सबसे ज्यादा क्लियरली जो दो चीजें देख सकते हो, दो पैटर्न्स इजीली देख सकते हो, वो है ग्रेट बियर and the Ursa Major. Yes? And now come to the next activity. One more activity we are having here now. So we will do it. Yes? So activity is make a picture of a night sky. Take a black chart paper, silver or golden glitter pens and draw what you have observed in the sky. ओके, आपको एक रात में जाना है, ठीक है, टेरेस पे, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द स्टार्स एंड देन टेक अ ब्लैक चार्ट पेपर, सिल्वर और गोल्डन ग्लिटर पेन लेना है आपको, एंड यू हैव टू ड्रॉ व्हाट यू हैव ऑब्जर्व। आपको वो ड्रॉ करना है जो आपने वहां टेरेस पे देखा है, ठीक है बच्चों? So you enjoyed it or not? Yes. So constellation के बारे में आपको क्या पता चला बच्चों? Yes. The pattern formed by the, कौन फॉर्म करता है पैटर्न्स? By the star in the, कहां पे? In the sky. Yes, the patterns formed by the stars in the sky. जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं by the stars, कौन फॉर्म करता है? स्टार्स, ठीक है? Where in the sky are constellation. Yes. और कैसे पैटर्न फॉर्म करते हैं? इट कैन बी ऑफ एनिमल शेप और इट कैन बी ऑफ ह्यूमन शेप्स और व्हाट इट कैन बी एनीथिंग। यस, जैसा कि एक मैंने आपको अभी दिखाया ना, बुक के अंदर जो आपका बना हुआ है वो कैसा लग रहा है? जैसे कोई स्पून होता है ना? स्पून ऐसी ही होती है ना? जब हम सूप पीते हैं उस सूप वाले स्पून का शेप क्या होता है? वो ऐसे ही तो होता है सूप वाला स्पून अपना। यस, कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना? और ऐसे ही हमारे स्टार्स ने फॉर्म किया ना? यस, सिमिलर है ना कुछ कुछ? एंड कॉन्स्टलेशन that we can see clearly. कौन से कॉन्स्टेलेशन बनते हैं ऐसे जो हमें क्लियरली दिख सकते हैं? कौन से हैं बताओ? नंदनी बताएगी कौन से हैं बेटा वो दो? यस, द ग्रेट बियर और एक और कौन सा है? उर्सा मेजर। यस, हमने पढ़ा ना अभी बुक में, दैट कॉन्स्टलेशन दैट वी कैन सी क्लियरली, जो हमें क्लियरली अपीयर होते हैं, ठीक है, आप उनको क्लियरली देख सकते हैं, वो कौन से हैं? द ग्रेट बियर एंड द उर्सा मेजर। यस, कॉन्स्टलेशन बेटा आपको समझ में आया कि नहीं? And yes, we will do one activity also. Yes, you will enjoy doing an activity na? Okay. So today we will give you homework regarding the activity only. Yes? Yes. So let us recall it once. Okay. Constellation is a word which means, con means together, stella means stars. Yes?
The pattern formed by the stars in the sky are the constellation. ठीक है, पैटर्न्स कौन से होते हैं? दे आर ऑफ ह्यूमन, एनिमल और एनीथिंग. पैटर्न्स कैसे भी हो सकते हैं. यस. एंड कॉन्स्टलेशन दैट वी कैन सी क्लियरली, जो हमें क्लियरली अपीयर होते हैं, जो हम क्लियरली उनको देख सकते हैं, वो कौन से हैं? द ग्रेट बियर एंड द उर्सा मेजर. सो लेट अस रिकॉल. ओके, जो हमने पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ा, क्योंकि यहाँ के बाद में आपका चैप्टर कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना चैप्टर रिकॉल करेंगे एक बार. ठीक है, जो भी हमने पढ़ाई की है अपने चैप्टर में, वो पूरा हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है. डन? Yes, so let us recall. Yes, moon is the only natural satellite of our earth. Life cannot exist on the moon as there is no air or water present on it. Stars have their own heat and light. Stars appears to form pattern in the sky and these patterns are called constellation. So student, as we have completed our chapter, yes, so now let us come to our activity number 2. Yes, that is in your book only, है ना? चलिए, so let us do the activity and let me tell you what you have to do in the activity. Yes. Activity number 2. ये आपकी सेकेंड एक्टिविटी है ना. फर्स्ट वाली तो दूसरी थी, फेजेस ऑफ मून. अब हमारी आती है सेकेंड एक्टिविटी, और इसमें भी आपको क्या करना है? इसमें भी आपको टेरेस पे जाना है. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द स्टार्स. पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया था? मून. एंड यू आर टेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ द मून. एंड नाउ यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टार्स, कि आपने स्टार की क्या शेप देखी. बेटा एनी वन, कोई भी एक शेप जो आपको वहां पे दिखी हो, ड्रॉ ओनली दैट. ओके, स्टार्स में आपको ओनली एक ही जो शेप, एक बार आप जाओगे तो आपको जो भी शेप नजर आती है आप वही ड्रॉ करेंगे. ओके, कल संडे है, आज सैटरडे है. ठीक है, आज सैटरडे को नाइट में जाना, कल आराम से आप संडे को उसको ड्रॉ करना. ओके, चलिए. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक वन चार्ट पेपर. विच कलर? ब्लैक कलर. वरना आपको क्या करना पड़ेगा? उसको व्हाइट को पूरे को पेंट करना पड़ेगा ब्लैक, है ना? दैट इज क्वाइट टफ. तो आप बेटर है कि ब्लैक चार्ट पेपर लो. यस, ब्लैक चार्ट पेपर लिया एंड यू हैव टू टेक 2 पेन्स. वन मस्ट बी सिल्वर एंड वन मस्ट बी गोल्डन. 2 पेन लेने हैं आपको. या तो मार्बल स्पार्कल ट्यूब्स लो या फिर पेन लो, बेटर है. ठीक है, आपको उससे क्या करना है? यू हैव टू मेक द स्टार्स. यू कैन मेक स्टार्स ना. ओके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू? आपको क्या करना है? आपको स्टार्स दिखेंगे बहुत सारे. ये छोटे स्टार हुए, बड़े स्टार हुए, छोटे बड़े, काफी सारे स्टार्स होंगे, है ना? Just like this you can see many of the stars. Yes. तो आपको अब इस स्टार के पैटर्न में, मतलब आसमान में तो बहुत और भी होंगे ना, बहुत सारे होंगे, मिलियंस में होंगे, है ना? तो आपको वहां स्टार्स को देख के जो भी शेप समझ में आती है, यू हैव टू ड्रॉ योर स्टार्स. अब ऐसे स्टार ड्रॉ किया आपने, डन. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द शेप. जो भी आपको शेप समझ में आई है, कि मुझे वहां पे ये वाली शेप दिख रही थी, मुझे वहां पे पेन शेप दिख रहा था, या कुछ भी, जो भी शेप आपको अपीयर हो, यू हैव टू ड्रॉ दैट. यस, सपोज जैसे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने ये स्पून शेप ड्रॉ की. ठीक है, यस. या फिर काइट शेप हुई. काइट भी तो दिख सकती है, जरूरी थोड़ा ना खाली स्पून शेप ही दिखे. यस, मैंने ये काइट शेप ड्रॉ की, स्पून शेप, कुछ भी, जो भी शेप आपको समझ में आती है, यू हैव टू ड्रॉ दैट. यस, इन द चार्ट पेपर. ओके,
And now come to your AHW question. Yes? Now, what you have to do? You have to do the AHW question. Yes? What you have to do in the copy? Write down the date, day, unit, chapter and chapter name. And then you have to write down the AHW. And AHW question number 3. कौन सा क्वेश्चन है ये AHW का आपका? थर्ड क्वेश्चन है. यस, कल हमने 2 किए, आज कौन सा है? थर्ड है. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है आपका? राइट डाउन द constellation which you can clearly see. Yes, you have to write down the name of constellation that you can see clearly. Yes, आपको वो नाम बताने हैं 2 जो हमने अभी डिस्कस किए थे, हमने टॉपिक पढ़ा था. सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू सी द बुक फॉर दिस. ठीक है, आपको बुक देखना है, आपको पता चल जाएगा कि इनके आंसर क्या होंगे. यस, सो कॉपी में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करना है और मैंने जो बोर्ड पे लिखा उसमें से आपको कुछ भी नहीं लिखना है. ठीक है, and you have to do 2 activities of this chapter. First is the phases of moon, second you have to draw the constellation. Okay, done everyone? Okay. The moon and the stars. Constellations. The patterns formed by the stars in the sky are called constellations. Observe the night sky carefully. Stars appear to form patterns in the sky. These patterns look like pictures of animals, humans, or things. Such patterns are called constellations. One of the constellations we can clearly see is the Great Bear or the Ursa Major. Let us recall. Moon is the only natural satellite of our Earth. Life cannot exist in Moon as there is no air or water present in it. Stars have their own heat and light. Stars appear to form patterns in the sky. These patterns are called constellations.